Good morning, students. Now, lesson number 17, page number 221, 17.3, constellations. Look at the sky from some time. Can you see some stars forming groups with shapes like those? In figure 17.11 में जैसे हमें पीछे है, जैसे कि the stars forming a group that has a recognizable shapes in called a constellations. Constellations were devised by some people to be able to recognize stars in the sky. The shapes of the constellation remember object similarity to those people. You can easily identify some constellations in the night sky. For this, you should know how a particular constellation look like and where to look for it in the night sky. जैसे कि हम आराम से उसके देख सकते हैं ना, या फिर उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. One of the most famous constellation which you can see during, जैसे कि हमने आगे आया था कि 17.11 में देखना है, जैसे ग्रेट बियर, ओरियन, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना. समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इज उर्सा मेजर 17.11 में जैसे दिखाई दे रहा है. इट इज ऑल्सो नो एज द बिग डीपर इन द ग्रेट बियर और द सप्तर्षि. There are 7 prominent stars in this constellation. In appear like a big idol for a question mark. There are 3 stars in the handle of the land and 4 it is in the, जैसे कि 17.12 में हमें दिखाई दे रहा है, वहाँ पे है ना सप्तर्षि जिसे हम बोलते हैं ना. Okay, now next activity 70.6. Observe this constellation for a new horse. हमें थोड़े सेकंड के बाद डू यू फाइंड एनी चेंज इन शेप्स, क्या है वो, हमें उसके शेप्स चेंज हुए, हमें वो देखना है. डू यू फाइंड एनी चेंज इन द पोजिशन, फिर हमें वही देखना है कि उसकी पोजिशन चेंज हुई. You will observe that the shapes of the constellations remains the same. You will also find that the constellation appears to move in the sky from the east to west. जैसे कि हम उसे वो अपना शेप्स या फिर अपने शेप्स है वो चेंज नहीं करते, लेकिन हमें वो कैसे दिखाई दे रहा है कि वो स्काई में वो ईस्ट से लेके वेस्ट तक वो ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे हमें दिखाई दे रहा है. I hear that we can locate the pole star with the help of Ursa Major. जैसे कि ऐसे मैंने सुना है कि जो स्टार्स है वो इसने ऐसे कभी ऐसे सुना है, जैसे कि एक्टिविटी 70.7. This activity should be performed on a clear moonless night during summer at about 9 PM. क्या है, हमें समर में जो क्लियर मूनलेस नाइट है वो 9 o'clock PM वो हमें दिखते हैं. लुक टूवर्ड्स द northern the part of the sky and identify the measure. You may get help from the elders in your family. हमें वो इसमें क्या कहा गया है कि वो जो है वो हमें क्या करना है, वो आइडेंटिफाई करना है अपनी फैमिली में कोई एल्डर्स ऐसे ही जिसकी हम वो हेल्प ले सकते हैं. लुक एट द 2 stars इन द एंड ऑफ सम मेजर. जैसे कि देखो यहाँ पे 17.13 में जैसे दिखाई दे रहा है वैसे. इमेजिन a starlit line passing through these stars as shown in 17.13 में. Excited the imaginary line towards the north direction about 5 times on the distance between into 2 stars. This line will land to a star which is not too bright. This is the pole star. क्या है वो, pole star है. Observe the pole star for some time. Note that it does not move at all
as other stars drift from east to west। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि वो क्या है, द पोल स्टार है। क्या है वो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो पोल स्टार है। और हमें क्या दिखता है वो कि वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन वो करता नहीं है, सिर्फ वो हमें दिखता हुआ होता है ना। नेक्स्ट है 70.8। ड्यूरिंग अ समर नाइट ऑब्जर्व ऊर्जा मेजर 3-4 टाइम्स एट एंड द इंटरवल 2 या 2 to 3 hours। क्या हमें दिखता है, वो हमें ऐसे दिखते हैं। ऑल्सो लोकेट द पोल स्टार्स ईच टाइम। Does Urja measure appear to move from east to west? Does to appear to blow round the pole star? Compare your observation with those in figure 17.14 में दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे पोल स्टार है ना, या फिर Urja measure। In fact, all the stars appear to roll around the pole star है। Note that the pole star is not visible from the southern hemisphere. Some of the northern constellations, like Ursa Major, may also not be visible from some points in the southern। जैसे कि हमें वो दिखाई दे रहा है, देखो है, जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है पोल स्टार और वो Ursa Majors। Orion is another well-known constellation that can be seen during winter in the late evening। क्या है वो, ओरियन है वो, और विंटर सीजन में हमें इवनिंग तक वो दिखाई दे रहा है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्नीफाइड कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई। वो क्या है, इन द स्काई। इट ऑल्सो हैज़ 7 और 8 ब्राइट स्टार्स, जैसे कि 17.11 में हमें दिखा था बी में। ओरियन इज ऑल्सो कॉल्ड द हंटर, उसको क्या बोलते हैं, हंटर बी। द 3 मिडल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर। द 4 ब्राइट स्टार्स अपीयर टू बी अरेंज्ड इन द फ्रॉम अ, यहाँ पे है द स्टार सीरीज विच इज द बिगेस्ट स्टार इन द स्काई। क्या है वह सबसे बिगेस्ट स्टार है। इज लोकेटेड क्लोज टू ओरियन। टू लोकेट सीरियस इमेजिन टू स्ट्रेंथ line passing through the 3 middle stars of the Orion. Look along this line towards the east. The line will lead to you to a very bright star. It is a Sirius। जैसे कि 17.5 में हमें दिख रहा है कि वो क्या है, वेरी ब्राइट स्टार है। क्या है ये, वेरी ब्राइट स्टार है। Is another prominent constellation in the northern sky. It is visible during to winter in the early part of the night. It look like a distributed letter W or M fig। जैसे कि 7.11 में हमें किया था वैसे। Do you know a constellation does not have only 5 and 10 stars। हम ऐसे जानते हैं कि 5 और 10 stars ये नहीं होते हैं। जैसे कि इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स 17.16 में हमें दिखाई दे रहे हैं। वैसे हमें दिखते हैं कैसे कि ये 5 और 10 है, लेकिन 5 और 10 नहीं होते। हाउएवर वी कैन सी ओनली द ब्राइट स्टार्स इन द कॉन्स्टेलेशन विथ योर नेक आई। ऑल द स्टार्स विच मेक अप द कॉन्स्टेलेशन आर नॉट एट द सेम डिस्टेंस, दे आर जस्ट इन द सेम लाइन ऑफ साइट इन द स्काई। जैसे हमें वो दिखते हैं, जैसे कि वो ऐसे समान नहीं होते हैं, लेकिन हमें वो क्या दिखते हैं, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन में ही वो दिखते हैं। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है द सोलर सिस्टम, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक यू।